Great. So your transformation is my commitment. And I hope you got the coaches. Yes, ma'am. Did you talk to your coaches? Did they approach you? Yes, yesterday I got a personal message, so I'll Okay, be connecting with them. okay, that's great. So it is basically just to support you all. एंड मैं तो प्रेयर करती ही करती हूँ, आपके जो प्रेयर्स है वो भी प्रेयर करेंगे और आपको पूरा सपोर्ट देंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि वी आर अलोन और हमसे ये हो नहीं पा रहा है, समथिंग ऑफ दैट काइंड. सो दे विल बी सपोर्टिंग यू थ्रू आउट, यू नो, वट एवर यू डू. सो a grateful heart is a magnet for miracles. So Hanuman ji is the, it's an ideal person who is a grateful person, जिसका grateful heart है. So that is where the miracles happens. And so the yesterday homework was 10 blessings, then magic dust. So what is the experience? Just now, Komal ji ने तो अपना experience share कर दिया. Anybody else would like to share the experience of when you did your magic dust and all that stuff? Have you done your homework? Yes, ma'am. I have uploaded also yesterday. Okay, great. So keep using magic dust. You can use this magic dust in any event, in any, some problem is there, some argument is there, wherever it is, just put a magic dust over there and see the miracles happening over there and visualize that everything is perfect, everything is healthy, everything is like happy. So when it is happy, everything is good, right? So next, every day, vitamin G is very, very important. You have to take this dose every day and it will shift the perspective and you can feel that you are in abundance, you are rich in relationship, you are rich in health, you are rich in every situation. So keep that dose on every day. जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने का, आंतरिक समृद्धि पाने का इतना ही नहीं बल्कि मोक्ष तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मंत्र है, दैट इज अदृश्य पर विश्वास. यानी कि आपको अपने मैजिक पे बिलीव होना बहुत जरूरी है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, सो today's topic is a magic morning. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy and to love. मॉर्निंग में उठो तो कितना मजा आता है, एक फ्रेश एयर, कोल्ड ब्रीज, उसको महसूस करना, तो वो आप अपने आप में एक न्यू वर्जन बन जाते हो. सो जस्ट enjoy that, just think of that and just love that. That is the best part. So let us, anybody would like to read today? आज वो नहीं आई, किंजल नहीं आई. Yes, ma'am. Yes, बच्चे. Day 11, a magic morning. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about every day. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great.
And that's when you will see the magic happen before your very eyes. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words. Thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day, missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of life. Say thank you for the good night's sleep you receive. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. I have always been delighted at the prospects of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, writer and playwright. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finish getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast. The refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Every day without exception, I say thanks as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power within me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiplied. Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic word thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use.
Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold hold a rock and hold my the best thing moment happened in the morning. Just show gratitude to it. So that is the thank you so much, Soumya, for creating this chapter so beautifully. It is such a blessing, you know, when you get up early in the morning and the first feet you put it on the floor and just say thank you. So what a beautiful morning it is. And बहुत लोग तो उठे ही नहीं, बहुत लोगों को जिंदगी दिखी नहीं, बहुत लोगों ने सुबह देखा ही नहीं. At least we are blessed that we have seen this beautiful morning. And we are, when we are grateful for right in the morning, ये जो morning के जो starting के ये जो 5-10 मिनट होते हैं ना, actually that sets up the tone for the whole day. So once you get up in the morning and you say, you know, thank you God, thank you universe, thank you for giving this beautiful day, you know, thank your bed, thank your pillow, thank your bed sheet, क्योंकि उसने आपको पूरी रात एक कंफर्टेबल स्लीप दी है. देन यू गेट गो टू द वॉशरूम, यू जस्ट सी, मतलब कितना ब्यूटीफुल बात है. टैप से पानी आ जाता है, गर्म पानी हो जाता है फटाफट. मैं जैसे आई गॉट अप एट 3:30 उठते ही सबसे पहले मैं गीजर ऑन कर देती हूँ. एंड इन 10 मिनट्स आई टेक वॉश, ब्रश करती हूँ जो भी ये है, तो फिर बाय दैट 5-10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है. एंड देन यू टेक अ बाथ. इन 10 मिनट्स आई एम आउट ऑफ माई वॉशरूम, यू नो. उस 10 मिनट में वो जो एक कंफर्ट जो वॉशरूम का है, तो हर चीज को, जिस चीज को हाथ लगाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेदर इट इज अ सोप, वेदर इट इज अ वाटर, वेदर इट इज अ टूथब्रश, वेदर इट इज अ पेस्ट, बिकॉज दे आर गिविंग यू दैट कंफर्ट लेवल कि आप इतनी जल्दी से तैयार हो जाते हो. सो आई हैव टू कम फॉर द सेशन एट 4 o'clock. तो आई कम हेयर, लॉग इन कर लेती हूँ मैं 4 बजे, पूरे 4 बजे सब लोग आ जाते हैं. So it is so beautiful, you know, such a wonderful, you know, you feel so good. And वो जो टाइम होता है मॉर्निंग का, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल. व्हेन यू से थैंक यू, मतलब मॉर्निंग में 100 टाइम्स थैंक यू हो जाता है. जिस जिसको हाथ लगाते जाओ, टच करते जाओ, फील करते जाओ और थैंक यू करते जाओ. सो व्हाट अ ब्लेसिंग दैट वी हैव गॉट. व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. बाहर जाओ, chirping of birds, trees, it looks so nice. मतलब वो fresh air, you feel really, really, really blessed and good about it, you know. So, और फिर उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट के लिए आपने क्या, आपने गैस ऑन की, गैस को थैंक यू करो. आपने टोस्टर यूज किया, आपने ब्रेड यूज की, आपने जो भी बनाना है आपने वो यूज किया. एंड यू जस्ट कीप ऑन सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज दे हैव मेड योर लाइफ सो कंफर्टेबल. और आपका दिन उसे शुरू. एंड देन जो आपने टास्क करना है, आप उस पर जब तक अपने टास्क पे पहुंचते हो तब तक आप कम से कम 100 टाइम्स थैंक यू कर चुके होते हो. एंड देन व्हाट, दैट इज व्हाई वी से यू हैव टू राइट डाउन द ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स. तो आप मॉर्निंग में ही अपने डायरीज में लिख लो. तो जब आप मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड लिख देते हो एंड यू आर राइटिंग द होल फ्लो ऑफ द डे, कि आज मेरी ये मीटिंग है, आई एम सो ब्लेस्ड कि द आउटकम ऑफ द मीटिंग विल बी दिस. जब आप मॉर्निंग में ही अपना पूरा दिन क्रिएट करते हो तो होल डे इज ब्लेस्ड. सो दैट इज व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज. So thank you for being alive. So what we do, we say thank you for being alive, thank you for the new day, thank you for whatever activity you start, just say thank you to that, thank you to your clothes, thank you to your shoes, and then thank you to the flow of the day. आज क्या क्या काम करना है, कौन कौन मिलेगा, किसके साथ मीटिंग है, किसके साथ नहीं है. And then you actually set the intention of the day. Today whatever I'm going to do is going to be successful. Today I'm going to have a productive day. Today will be the best day of my life. You just create that intention right over there. So when you create your own day, फिर वो आप ही के जैसे, आपने जैसा प्लान किया है वो वैसे ही फ्लो बनेगा. कुछ और करने की जरूरत नहीं है. So anything you touch, just say thank you. Whatever you do, just say thank you. टी, कॉफी, जूस, ब्रेकफास्ट, अप्लायंसेस, जिस चीज को भी यूज करो, बिकॉज वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको करने के लिए. लोग मिलते हैं, आप अपने पेरेंट्स से मिलते हो, अपने सिबलिंग से मिलते हो, जस्ट से गुड मॉर्निंग, यू नो, यू फील गुड अबाउट इट.
So every day, every moment is a gift. So just cherish that gift, just actually enjoy that gift. That is the best part of the morning. So that is why we say it's a magical morning. And why we do all these things? Because when we do thank you, thank you, thank you, when we show that love, when we show gratitude, you are at that a high vibrational level. तो आप पहले टाइम से मॉर्निंग से ही चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर देते हो. जो आपने ये फ्लो बनाया है वो फ्लो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो. और बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाती है, बाय चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है, दैट इज बीइंग टेकन केयर बिकॉज लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ऑलरेडी देयर. तो आप उस चीज को मैनेज कर पाते हो. So give lots of gratitude everywhere. Something is going to happen, just put a magic dust ki this should happen this way, so you can create that thing. So every day is a gift and you live every day as a gift. Great. So Viren is there. Okay, great. So welcome, Viren. So that is why his love, gratitude, yeah. Friends, joy, compassion, happiness, celebration, satisfaction. When you are in this mode, you're at the high vibration level. फिर जब अब morning में आपने gratitude कर लिया, so there will not be any anger, there will not be any hate or resentment, depression, worry, fear, क्योंकि आपने अपना दिन खुद create किया है और blessings के साथ किया है. जब आप ब्लेसिंग्स के साथ करते हो तो आपका पूरा दिन ही ब्लेसिंग्स के साथ जाता है. राइट, सो लेट मी शो यू अ वीडियो. Scientific American, a prestigious. 100% science, ma'am. Yes. So Proven you can create your reality. You can create your future. You can create anything. Only thing is you be aware what you really want. And you believe. अपने पास्ट के साथ जब तक बैठे रहोगे ना तो आगे नहीं बढ़ सकते. वही चक्कर घूमता रहेगा. Yes. In the morning, just leave. कल का दिन चला गया, कल को लेके बैठे रहोगे तो नया दिन नहीं बना सकते. So you need to create, means you have to come to at that place where you are unknown to the things. Means आप पहले अपने माइंड को ब्लैंक करोगे तो ही आप क्रिएट कर पाओगे ना. पहले के लेके बैठ रहेंगे तो क्रिएट नहीं कर सकते. चाहे आप वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका कोई भी सिचुएशन हो, इफ यू कीप ब्रिंगिंग पास्ट इन द प्रेजेंट, you will never be happy. You will never be happy. If you want to create a new life, maybe with the same person, with the same relationship, तो सबसे पहले उसको forgive कर दो, क्योंकि पास्ट तो को कहीं नहीं है. आप पीछे मुड़ के देखो, कोई पास्ट नहीं है. If you really want to go ahead with the relationship, तो आप उसको completely माफ कर दो, and there is no thought about the past. Now create the future. So when you create the future, you visualize what kind of relationship you can have with that person. कैसा होना चाहिए, किस तरह से रह रहे हैं, क्या है. Keep showing gratitude, keep showing gratitude, keep showing gratitude. You will create that scene और automatically वो सच हो जाएगा. That is the best part. Fake it till you make it. Fake it till you make it. है ना? So this is how you can create your future. You can create your life,
connected to relationships, connected to health. इवन हेल्थ में भी यही है कि आपको जो पेन हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो. ओके, आई एम हैविंग दिस पेन, आई एक्सेप्ट इट, एंड you start loving that organ. I love you. You will love the organ. I love you. I love you so much. तुम्हारी वजह से मैं ये कर पाता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं वो कर पाता हूँ. So that way, every situation, whether it is relationship, money, or event, or anything, you just have to show gratitude, and you have to make it to the zero level. First आप blank में आओगे, and then you create the future. जैसे आपने इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट चैप्टर था मनी का, जिसके अंदर यू वर गिवन वन एक्सरसाइज दैट यू गो बैक टू योर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में आपको कुछ भी मिला था, खाने को मिलता था, कपड़े पहने थे, ये स्कूल जाते थे, जो भी मिलता था उन सबको थैंक यू करना है आपने. यू डिड दैट, तो पास्ट कंप्लीट हो गया. नाउ अब जो मनी का पार्ट आया, उसमें आपने क्या, जो आप रिसीव करते हो उसको थैंक यू बोलोगे. जो आपने बिल पे कर दिया है, थैंक यू पेड कर दिया. और जो आपने अभी पे करना है, थैंक्स फॉर द मनी. दैट इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग. So every situation, every relationship, everything, you have to complete the past, forgive the past, heal the past, क्योंकि वो दोबारा नहीं आना चाहिए. उसका सबसे अच्छा तरीका होता है you just sit over there and think about the past. जो भी हुआ है आपके लाइफ में, कैसे भी है, जिसको बहुत ही मुश्किल है मिटाना, तो आप उसको आंख बंद करो, उसको विजुअलाइज करो. एंड विजुअलाइज करते टेक योर राइट हैंड एज योर रबर एंड just wipe it off as if it is there on the whiteboard. Just wipe it off as if you're wiping from the memory. When you wipe it, you say thank you, thank you, thank you, I accept it, and I have to create a new one. तो जब आपने पुराना एक्सेप्ट कर लिया, उसको डिलीट कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, किसी भी मोमेंट को करके देखना, आपको दोबारा वो मोमेंट याद ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. दैट इज द बेस्ट. हाँ, कई बार बीच बीच में याद आता रहता है, पहले की बात कर रहे हैं. अभी क्या जल्दी से वो हाई वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं, मतलब अरे यार ये तो करना नहीं था, वो एकदम से क्या ब्रेक सा लग जाता है तो माइंड मैं में. आपको टेक्निक बता तो रही हूँ, उसको बिठाने क्या, आप हाँ. विजुअलाइज करो, राइट हैंड को वाइपर समझो, डस्टर समझो, एंड देन यू क्लीन इट. क्लीन करो पूरा बोर्ड. जब आपने पूरा बोर्ड क्लीन कर दिया तो नहीं आएगा ना वो फिर. नहीं आएगा. करेक्ट. मैम कई बार दिन में 10 बार आ जाता है. I was in a very tough relationship for 20 years. So that is what I'm saying. Do it. When you do it, it won't come back. जो मोमेंट याद आता है उसको क्लीन कर दो. जो मोमेंट याद आता है उसको क्लीन कर दो. Because it will keep on coming, it will keep on disturbing you for the new creation. So you cannot create it. So you need to delete it permanently from your memory. वही तो बहुत मुश्किल है मैम. परमानेंटली कोशिश करते हैं, लोग कहते थे. That is what I'm saying, Komal. You have to accept it that you do this exercise and then tell me ना कि हुआ कि नहीं हुआ. Do it first of all. हाँ नहीं, it is happening, but पहले से तो बेटर है मैम बहुत, कि भाई मैं वाइब. I am teaching you this. I am teaching you this technique. Now use this technique and see it will not come. Okay, just do this. आप इसको करो तो आपको नहीं आएगा वो वापस. फिर आता है तो आपने ठीक से नहीं किया, आप उसको दोबारा करो. It will not come. It will not come at all. Correct. It is a tried. I never give any technique or anything which doesn't work. It will work. Yes. Only thing is you need to apply it. ठीक है. आप इसको apply करो and you will see that it is a miracle. You know, it won't come back at all. कोई भी चीज, किसी भी सिचुएशन को आपने चेंज करना है, उस सिचुएशन को लाओ, उस सिचुएशन को वाइप आउट कर दो. एज इफ इट इज एक टीवी पे हो रहा है, एक स्क्रीन पे हो रहा है, तो आपने उसको हाथ को डस्टर बनाना है एंड देन वाइप कर देना उसको पूरा. एक ये तरीका होता है. एक तरीका होता है यू राइट डाउन ऑन अ पेपर.
अरे वो तो मैम कई बार कर चुके हैं, बट राइट क्या करके उसको लिख के, हाँ उसको लिखने के बाद उसको जला दो, अच्छा फ्लश कर दो. So when you do it, it won't come back. That I am flushing it out of my life. अच्छा 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 I'm flushing it out of my, I'm burning from my life. उसको burn करके उसको बाहर फेंक दो. So when you have burnt it, when you flushed it out, it won't come back. अच्छा अच्छा. I have not burnt it, बट लिखा तो मैंने 1000 बार होगा. 25 साल आई हैड अ तो वेरी. कोई पॉइंट नहीं है लिखने का. लिखने के बाद उसको बर्न करोगे, उसको हटाओगे तो फायदा है ना, नहीं तो फायदा नहीं है. अच्छा 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 ठीक है मैम, ठीक. That is the complete thing. इसीलिए मैं लिखती नहीं हूँ, डर जाती हूँ, फिर एकदम से मैं उसी में चली जाती हूँ. नहीं नहीं. लिखने के बाद फिर और भी बातें सोचने चली जाती हूँ, वो लिंक होती चली जाती है ना मैम, कि यार इतना किया और क्या मिला. Don't expect anything from anybody. Don't expect, क्योंकि expectation आपको हर जगह मार देती है. Just keep giving, keep giving, keep giving. Universe will give you back everything. ठीक है. Don't expect anything from anybody. मैंने इसका इतना किया, मैंने इसका इतना किया, क्या हो गया, कर दिया तो what is the big deal? You were supposed to do. खत्म. That is what God has given you the opportunity. At least you can do it. There are so many people who cannot do it. उसी में तो फिर मेरे फादर या मेरे ब्रदर सिस्टर बोलते हैं कि भाई we told you that you took a wrong decision and everything. अभी आज तो वापस आइए घर और ये सब चीजें. तो बार बार वो, आप अपने पुराने को, पहले पास्ट को कंप्लीट करो कोमल. जब तक वो पास्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपका फ्यूचर नहीं बनेगा. So you have to complete it completely. Whatever happens happens, you know. कोई रीजन है, उसके पीछे भी कोई रीजन है ना. अच्छा हुआ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ. नहीं कंटिन्यू किया तो बहुत अच्छा हो गया, पता नहीं क्या वर्स्ट हो जाता उसके बाद. हाँ हाँ वो डैडी, फिर हाँ डैडी ने वो विजुअलाइज किया था. Absolutely. Then he came and took Just हाँ. do this exercise and just make sure that this you do it so that you can create new things, you know. कभी भी एक ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर डालोगे तो गिर जाएगा, मतलब वो ओवरफ्लो कर जाएगा. गंदा पानी है, उसके अंदर पानी, वो पानी तो पी नहीं सकते ना. नहीं बेटर है थ्रो द वाटर, क्लीन द ग्लास एंड देन पोर अ न्यू वाटर इनटू इट. वही ना, बार बार थोड़ी थोड़े दिनों में बोल देते हैं 25 साल तुमने वेस्ट कर दिए, हमने तुझे बोला था कि छोटे भाई बहन. कोमल पेरेंट्स तो छोड़ेंगे नहीं, बट आपको अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा. You are repeat. This is the statement you are repeating 5 times in front of me. You are only creating it again and again. ठीक है. You don't have to create it. आप अपने आप को भी 10 बार बताते हो ना, मत बताओ. कोमल, you are hurting yourself. ठीक. Because when you are explaining something to other person, you are कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया. Stop it. Yes, ma'am. बोलेंगे उतना hurting उसको yourself. तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उसी चीज को कुरेदते जा रहे हो, कुरेदते जा रहे हो, कुरेदते जा, बल्कि यू आर पुटिंग अ डार्क मार्क ओवर देयर. ठीक है. Am I audible? Yes, yes, Viren. Yes, Monica जी, I was saying कि जितना ज्यादा हम बात करेंगे उस बारे में, उसका उतना ज्यादा मैं बात कर रहा. अरे मैं तो कोशिश करती हूँ भूलने की, पर घर वाले है ना, फिर कुछ ना कुछ बात होती रिपीट. आप सी कोमल, यू हैव टू कंप्लीट द पास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. घर वाले 10 बातें बोलेंगे, 10 बातें सुनती हो तुम, 10 बातें, हर बात फॉलो करती हो तुम, नहीं ना. अरे दिमाग में तो उन्हीं की बातें ज्यादा रह जाती है ना. क्यों रह जाती है ना कोमल? तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. नो, हाँ नहीं कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं, तभी जिंदा हूँ. नहीं, look into the mirror and appreciate yourself. You don't do that. नहीं, मिरर में मैं I don't appreciate myself. हाँ, so go and do it. अच्छा ठीक है. Once you start doing it, you should be proud of yourself, whatever you have done in your life. ठीक है. I gave 1000% and then ठीक है. You just come out of past. Until and unless you are out of your past. See, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सेशन जब भी शुरू होता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ पास्ट से शुरू हो जाता है. आपको कुछ नहीं लाना है, वो पास्ट आप उनको डिलीट कर दो, इरेज कर दो. मुझे मालूम है इट इज वेरी डिफिकल्ट, डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, बट अगर पास्ट रहेगा ना, आप ये देखो,
पुरानी सड़ी गली सब्जी सामने पड़ी होगी तो आप फ्रेश सब्जी का मजा ले सकते हो? अभी भी नहीं ले सकते ना. तो you have to remove that past so that you can create a beautiful future. मैम my brother, my sister saying, अब क्या फ्यूचर होगा तेरा, अब क्या होगा इस एज में, क्या फ्यूचर? आप फिर उसको रिपीट कर रहे हो. उनके कहने से क्या हो जाता है? If they say you are a bitch, are you a bitch? No. Then नहीं. So when somebody is saying something, you are a bitch. For me, it is just a 5-letter word. That's it. अगर आप उसको मीनिंग देते हो ना, आप उसको समझते हैं हाँ उसने मेरे को बिच बोला, आप 4 गाली और उसको दोगे. आपने उसको मीनिंग दे दिया. डोंट गिव अ मीनिंग टू इट ना. ठीक है. बी रिस्पॉन्सिबल टू योर लाइफ. कहने इसीलिए तो तुझे अभी घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छी लाइफ दी थी पेरेंट्स ने तुझे. We did not take it in the platter. जैसे कार के लिए, कुछ भी चीज के लिए, तो I'm using the car of my father. He's saying purchase your own car. That's what I'm saying, Komal. Stop it now. Take responsibility of your life and create your own things. That's what I'm doing now. When you create your own things, they don't have any topic to talk about. हाँ, अभी कम हो गया टॉपिक. हाँ, बहुत कम हो गया. पहले से तो बहुत कम हो गया. हाँ, वो ले दे के पूरे घर में मेरा ही टॉपिक चलता है मैम, और नेगेटिव. So how important you are to them? Think that way ना. हाँ, वरीड तो रहते हैं मैम. तो बस ठीक है. पेरेंट है ना, वो तो रहेगा ही. See Komal, you cannot change anything. ठीक है, आप उनके नेचर को चेंज नहीं कर सकते, उनके कंसर्न को चेंज नहीं कर सकते. When you change yourself ना, automatically the environment changes. Change starts from you. No, he has given me कि ये फ्लैट तेरे को दे दिया, कार तेरे को दे दिया. Stop it, Komal. I don't want to listen any of your story. मैं आपको नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप बार बार पकड़ के फिर एक कुछ चीज उठा के ले आते हो. You have to remove all these things, Komal. Just come out of complaints. ठीक है. आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके कोई भी कर रहे हैं, वो आपको जो मर्जी बोले, आप मुस्कुरा दो. ओके, फाइन. But Komal ji, you are doing the same thing. You are complaining about your parents to us. Absolutely. You should stop that first. Then they will stop. फर्स्ट चेंज आपके अंदर आना चाहिए. उनको तो मैं नहीं चेंज करूंगी, मुझे तो आपके ऊपर कंसर्न है. यू आर हियर, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म यू. If you want to change, you should change yourself first. आपका कंप्लेंट मोड नहीं होना चाहिए ना. उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे. यू आर ऑल्सो कंप्लेनिंग. आउट ऑफ द कंप्लेंट मोड. Appreciate them, show gratitude to them. ठीक है. At least they are concerned about it. फादर है ना, बेटी हो तुम उसकी, तो करेंगे ही करेंगे. You have to show gratitude to each and every person in your family. You have to transform the relationships with them. You have to do that. Ma'am, the problem is not with Komal, it's the normal problem. We live in a normal problem. It's not with Komal. Komal के साथ हमें क्यों है? Because she has to come out of it. Yes, she has to come out to take the responsibility for this. That is why I'm telling you the technique. You know, कोमल, जो भी पुरानी चीज याद आती है उसको सोचो ये हो रहा है और उसको वाइप कर दो. Keep on doing it जब तक कि पास्ट आपका खत्म नहीं हो जाता. And for किसी के साथ ग्रज करने से, किसी के साथ कंप्लेंट करने से, किसी की पास्ट को रखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. Are you getting my point? Yes, ma'am. हाँ, तो आपको सबको माफ करना है. सबको आप कुछ जो किया, जैसे किया, उन्होंने भी किया, आपने किया, that's it. खत्म कर दो उसको. Now it's your new journey. और अभी तो स्टार्ट हुई है, आपके ट्यूशंस मिल गए हैं, वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हुई है. Now it is going to be magical now. आप सेशन में हो, आप अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो कोमल. तो इसीलिए be that person who is full of gratitude rather than complaint. ठीक है मैम. ओके. See, उस फादर ने भी अपनी गाड़ी दे दी ना आपको. हाँ, कर दे दी, एक मकान दे दिया. Gratitude.
देखो हार्ट में या ग्रैटिट्यूड रहेगा या कंप्लेंट रहेगा. When you are in gratitude, there is no complaint. Just say thank you, thank you, thank you. Keep on saying thank you. और पेरेंट्स के साथ तो कोई ग्रज होना ही नहीं चाहिए. Keep on saying thank you. Keep on saying thank you to them. Because of them you are here, ना? पेरेंट ठीक है, वो पीछे से ब्रदर सिस्टर, उनको भी थैंक यू बोलो. ठीक है. अभी भी आप कंप्लेंट में आ रहे हो कि ब्रदर सिस्टर कर देते हैं. कोई कुछ नहीं करता. पेरेंट्स का अपना दिमाग भी तो है. अरे वो एज हो When गई. you show gratitude, they will not utter a word against you. I'm telling you, do it. ठीक है. When you show gratitude, there will not be any complaint from their side. I'm telling you, believe me. मैम मैं सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मेरा फैमिली था. अचानक ही पता नहीं था क्या है. अच्छा. फिर आप था पे पहुंच जाते हो. कोमल, you have to transform yourself. ठीक है मैम. कंप्लेंट मोड से बाद जितने लोग हैं ना, आज आपने सबको ग्रैटिट्यूड देना है. ग्रैटिट्यूड का मतलब पता है क्या करना होता है? हाँ, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माय ब्रदर फॉर दिस थिंग. हाँ, आई एम सो 10 ब्लेस्ड. स्टेटमेंट्स ब्रदर के लिए लिखो, 10 स्टेटमेंट सिस्टर के लिए लिखो, 10 अपने पेरेंट्स के लिए लिखो. ठीक है. एंड एक भी मन में कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए आपको उसके अगेंस्ट. अच्छा. वो एक भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए. आप यू शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दोज पीपल. ठीक है. थैंक यू. कुछ भी एपिसोड दिमाग में आता है उसको वाइप कर दो, हटा दो. आई फॉरगिव यू. वही कश्मकश चल रही थी मैम 3-4-5 दिनों से. अब कश्मकश छोड़ दो. आपको आपको मिल गया उसका आंसर. ठीक है. जस्ट डू दैट. ठीक है. See, what consumes your mind controls your life. If your mind is consumed by your complaints, so you will complain. हाँ. If your mind is consumed with lots of gratitude, so you are in gratitude. They will appreciate you. Komal, I'm telling you, these tuitions will be multiplied अगर आप gratitude में रहोगे. अगर आप complaint mode पे रहोगे, this is what you're teaching those students also. So don't do that. अच्छा. ठीक है मैम. Done. Have to be in the gratitude. ठीक है? ठीक है. Thank you so much for taking it on. Thank you. So now, आप आज पूरे दिन में मॉर्निंग में जब आप उठे थे, 3 ऐसी चीजों को जो नेचर्स गिफ्ट है उनको थैंक यू करो, शो करो ग्रैटिट्यूड. You can show this gratitude. Thank you so much for the tap providing water in the flow. Thank you for so much for brushing. के लिए मैं यूज होता है. टूथपेस्ट को थैंक यू कर सकते हो. गॉड को थैंक यू कर सकते हो कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं कि मैं चूज करना चाहता हूँ. So you can show gratitude to anything. So choose any 3 things and you show the gratitude. Done. So the happiest people do not necessarily have the best things. जो सबसे खुशनुमा लोग होते हैं उनके पास सारी बेस्ट चीजें नहीं होती हैं, but they simply appreciate the things they have. जो उनके पास है वो उसी की तारीफ करते रहते हैं. So be happy whatever you have. Once you are having gratitude towards what you have, then only it will be multiplied. So जो आपके पास है उसको थैंक यू करते चलो, और उसको थैंक यू. जितने ट्यूशंस है आप उनको थैंक यू करते चलो. देखो अपने आप मल्टीप्लाई होंगी. ठीक है. दुनिया में केवल एक ही इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप बदलना चाहते हो तो, और वो खुद आप हो. और कोई नहीं बदल सकता तुम्हारी जिंदगी. कुछ भी, कोई भी, खुदा आके भी नहीं आपकी जिंदगी बदल सकता. करेक्ट. ओनली यू हैव टू चेंज. So today's assignment is write 10 blessings, or the moment you wake up,
पूरे दिन जो सुबह उठते हो, उठ के आपने क्या क्या किया, किस किस को आपने वो सब थैंक यू करते जाना है। जो इस चीज को हाथ लगाते हो, जो चीज करते हो पूरे दिन के अंदर, आपका कुछ भी, आपकी मीटिंग है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आप आपके साथ किसी का कोई अपॉइंटमेंट है, कोई मेल लिखना है, कुछ भी है, whatever is there, just show gratitude to each and everything. That means you create the flow of the day right there. ठीक है? And then at night while sleeping you take magic rock and scan the whole day. Whatever is the best moment happened, just say thank you, thank you, thank you for the best moment of the day, and you just show gratitude to it, right? So this is what is the homework is, and then you say thank you. Anybody has anything to ask? मैम एक छोटी सी बात थी। हाँ बोलो सारिका। मैम हम बाहर गए थे इनके फ्रेंड्स के यहाँ, तो वहाँ पे हुआ ये कि इनको कोई बात ऐसी मिसअंडरस्टूड हो गई कि जो मैंने नहीं की। इनको लगा मैंने वहाँ ड्रिंक करी है, बट मैंने ड्रिंक नहीं करी। इनके दोस्त इनको खींच रहे थे और पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे, और ये बात मुझे पता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। और ये 2-3 दिन तक इन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं नॉर्मल रही सबके साथ भी, क्योंकि तमाशा नहीं क्रिएट करना था बिल्कुल भी। बट समहाउ मेरे अंदर वो चीज जैसे वही अपने आप पे काम कर रही हूँ मैं, बट परेशानी सी आ गई मेरे अंदर। तो आते आते घर पहुंचते पहुंचते लास्ट में आई बर्स्ट आउट। और अब वो शट अप सारिका, अब वो चीज ना मुझे परेशान कर रही है कि मैं जब इतना मैंने कंट्रोल किया, जब इतनी चीज हो गई थी, तो तेरी जब गलती भी नहीं थी तो तुझे बस्ट आउट होने की क्या जरूरत थी? एब्सोल्युटली। अब पीस ऑफ माइंड वो था। हाँ, अब वो चीज मुझे खुद को मैं थोड़ा परेशान हो रही हूँ कि क्योंकि वो इतना आगे से फिर मतलब फिर चिल्ला पड़े, और फिर उनको ये लगा कि नहीं तूने किया होगा, मेरी ये गलती नहीं थी। मतलब जहाँ वो थोड़ा सा फील कर रहे थे कि हाँ हो सकता है तूने ना ली हो। और मैंने कहा ट्रस्ट भी एक नाम की चीज होती है। मैं पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशन मोड में चलेगी कि इतने साल हो गए हैं, व्हाई ही डोंट ट्रस्टिंग मी, व्हाई ही इज नॉट सपोर्टिंग मी एंड ऑल। वही बकवासबाजी जो पहले करती होती थी। अब इससे जल्दी से जल्द निकलना चाहती हूँ इस फीलिंग से। कुछ नहीं, तुमने अभी तो शेयर कर लिया, खत्म हो गई कहानी। अभी इसी को मोमेंट को दिमाग में रखो, सामने देखो बोर्ड है, उसको वाइप कर दो, इट इज डिलीटेड। हाँ जी, वैसे काफी बातें, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड शो टू योर हस्बैंड। मैम बहुत ना वो बहुत गुस्से वाले मोड में जब आ जाते हैं ना, तो मेरे को घबराहट होनी शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, दैट यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट द वे ही इज, एंड यू कैन चेंज इट व्हेन। मैंने जो आपको प्रैक्टिकल सेशन में रिलेशनशिप के ऊपर काम करना सिखाया था, जस्ट प्रैक्टिस दैट। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, आज से करते हैं। हिज टेम्परामेंट कंप्लीट चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सारिका, you have to stand in front of the mirror, you have to appreciate yourself. मैम सिर्फ आपकी इस बात से मैं करके गई थी, और वहां पे भी मैंने बहुत अच्छा अपने ड्रेसेस पहने, सबने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए, एवरीथिंग वाज गोइंग कूल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बट पता नहीं, कहते हैं ना कि कोई ना कोई चीज अनएक्सपेक्टेड। hold on. कोई ना कोई चीज कुछ नहीं है। Did you put magic dust before going to the gathering? मैम मैजिक डस्ट तो कल ही किया है हमने, मैं तब से ही डाले जा रही हूँ। But then also prayer किया था? मैम हाँ, प्रेयर किया था मैम। मतलब मैं जाते वक्त बस इसी मोड में थी, एवरीथिंग इज फाइन, सब बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं बहुत आपको आगे से ध्यान, आपको मैजिक डस्ट आपको कल पता चली है। हाँ यू दैट इज व्हाट, आज ये आपको ये भी मैंने मॉर्निंग का शाम तक बता दिया। अब आपको पता है आपको किसी गैदरिंग में जाना है, ठीक है? सो आपने आंख बंद करनी है, यू विल पुट मैजिक डस्ट ऑन द गैदरिंग and everything will be fine, and the relationship with my husband will be perfectly, it will be compatible. We are supporting each other, we are loving each other and enjoying each and every moment in the party. You create it in advance. देखो बेटे, मैजिक का फायदा तब है जब आप उसको यूज करो। हाँ जी बिल्कुल मैम। उसको यूज ऐसे करो, first of all you take the responsibility of yourself, start appreciating yourself. You don't appreciate yourself, अपने आप को तुम हर चीज में कम समझती हो।
इतने साल हो गए, आई एम टेलिंग यू, यू आर क्रिएटिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। आप सोचो नहीं मैंने तो नहीं किया, कोमल ने बोला मैंने नहीं किया, मैंने इनका इतना सब कुछ किया, इन्होंने मेरे, आप लोगों ने अपने सिचुएशंस खुद क्रिएट किए हैं, किसी और ने नहीं किए हैं। डिपेंडेंसी हो गई है मैम मेरी, वो गलत है, बहुत गलत है। मैं डिपेंड करती हूँ उन पे कि वो मुझे प्रेस करे, वो मुझे प्यार करे, ये सब अरे बदतमीजी छोड़ो ना तुम, हो गया मैम। सी नो डिपेंडेंसी नथिंग, यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट। Only समझ thing गई is you have to visualize it what you want. You have to show lots and lots of gratitude. First, आपको सिर्फ उनकी कंप्लेंट्स नजर आ रही हैं। ना ना मैम नहीं करती मैम। कल सुबह से उठते ही दिमाग में बहुत भारीपन आया। आपने तो अब मॉर्निंग रिचुअल बताया ना मुझे, मैं आज सुबह उठी हूँ ना, मैं बहुत घबराहट और आंखों में पानी जैसे भरा हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ यही बोलना शुरू। क्यों घबराहट? यही तो मैं कह रही हूँ। यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल, घबराहट, fearful, resentful, guilty, ये सब लो वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये लो वाइब्रेशनल स्टेट्स है, वो आपको ऊपर आने ही नहीं देंगी। आप ऊपर ही नहीं आओगे तो आपकी विश कैसे पूरी होगी बताओ? मैं समझ गई मैम, मैं सुबह से ही बोल रही हूँ नो कंप्लेंट सारिका, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तुमने बोला शट अप सारिका, हाउ कैन वो मैं यू शट अप टू योरसेल्फ? नहीं मैम, मैं नेगेटिव बोल रही थी ना अपने बारे में और रोना आ रहा था, तो इसलिए अपने आप को बोला तो था बेटे कि चुप। इसको सबसे पहले अपने अंदर उतना ताकत लाओ कि यू आर एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस व्हाट इज हैपनिंग। So that will come when you start doing mirror exercise बच्चे। हाँ जी ठीक है। 5 से 10 मिनट मिरर एक्सरसाइज करो, अपनी तारीफ करो, यू आर ब्यूटिफुल। सी यू डोंट हैव टू बॉदर व्हाट पीपल आर सेइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्यूटीफुल लग रहे हो अपने आप को ना, दैट्स इट। ठीक है मैम, ठीक है। एंड यू क्रिएट योर सिचुएशन। इसके बाद विजुलाइज करो कि व्हेन योर हस्बैंड इज लुकिंग एट यू, ही इज अप्रिशिएटिंग यू, ही इज प्रेजिंग यू। एंड उस रियलिटी में नहीं होता, फेक में तो आएगा, वो तो तुम्हारी क्रिएशन है। वही करके खुश रहो। ठीक है मैम, ठीक है। वही करके खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में वो भी क्रिएट हो जाएगा। गुस्सा भी उनका खत्म हो जाएगा। द ओनली थिंग इज यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इन हिम। वो तब आएगा जब आप बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उनको दोगे। ग्रैटिट्यूड देने का मतलब होता है बच्चे कि आप उनके डिवाइन बीइंग को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। जब भगवान को आप पूजा करोगे, भगवान को आप याद करोगे, तो भगवान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मैम। बस आप जब ग्रैटिट्यूड शो करते हो दूसरे इंसान को, उसके डिवाइन बीइंग को वो ग्रैटिट्यूड जा रहा है। जब वो डिवाइन बीइंग को जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ही विल बी डूइंग व्हाट एवर इज एक डिवाइन बीइंग का जो आंसर होना चाहिए ना, वो भी वही होगा। ठीक है मैम, समझ गई। ठीक है। हाँ सो जी, जस्ट डोंट कीप दैट थिंग इन माइंड, वो ऐसे है, वो ऐसे है। वो वैसे ही है जैसे आप चाहते हो। आपने सिर्फ देखो बच्चे, एक ड्राइंग बनानी है आपने, ठीक है? हाँ जी। उस ड्राइंग में स्ट्रोक्स जैसे लगाओगे वो उस ड्राइंग वैसे ही बनेगी। ओके? हाँ जी। तो आपने वही स्ट्रोक्स लगाने जो आपको चाहिए। आपने वैसा ही शक्ल बनानी है जैसी आपको चाहिए। अगर पास्ट आ जाता है तो पास्ट को आज मैंने आपको बता दिया, एक बोर्ड लो, उसके ऊपर वाइप कर दो, जितनी चीजें सब कुछ वाइप कर दो। वो तो मैम जब आप कोमल दीदी को समझा रहे थे ना, मैंने साथ के साथ ही कर दिया था कि ये साला चंडीगढ़ की ट्रिप ही खत्म हो गई मेरी जिंदगी से। मैं तुमको बता रही हूँ, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड का अफेयर, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी लड़की के साथ हो गया था।
तो वो बहुत रोई, बताया था, मैंने बताया था ना। हाँ she created and she took the pledge कि मैं मोनिका मैं तेरे को करके दिखाऊंगी, मैंने प्लीज। So she used to do mirror exercise every day 10 to 15 minutes, वो करती थी, and then she used to show gratitude to that person। मतलब उसके लिए वो भगवान की तरह था कि मुझे ऐसे ऐसे, एंड गुस्सा भी करता था तो वो रिएक्ट नहीं करती थी, बस उसने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई एक्सेप्ट इट। एक बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं करोगे, 3 बार रिएक्ट नहीं करोगे, 4 बार रिएक्ट करोगे, 6ठी बारी वो अपने आप उसको लगेगा ये तो करिए, वो गिल्ट में आ जाएगा वो इंसान। मैम पता है ये हुआ भी क्यों है, वहाँ पे जो इनकी सबकी वाइफ्स थी ना, 5 ग्रुप थे, वो ना बड़ी डाडी किस्म की नहीं होती, मतलब लेडीज जैसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग और मतलब इस तरीके में थी वो सारी। पता नहीं क्या हुआ, नेगेटिविटी आ गई मेरे ऊपर या क्या हुआ, और पता नहीं गौरव ने एकदम कैसे कर दिया कि तू उनके साथ पी हो गया। और ये पता है 14 साल हो गए, एक बार मैंने मुंह तक नहीं लगाई, मैं कभी पीती नहीं हूँ, मैं ऐसी हुई नहीं। वो देखो ना, वो पता है मेरे वो दिमाग में आ जाती है क्योंकि वो सारी ले रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट हैव टू कंप्लेन अबाउट दोस पीपल आल्सो, इट इज देयर कल्चर, लेट इट बी देयर कल्चर। बोलो मेरा कल्चर नहीं है। अगर इन्होंने कह भी दिया ले ली थी तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि मैंने ले ली होगी, अच्छा आपने को लगता है तो चलो मैंने ले ली होगी, दैट्स इट। इतना करके चैप्टर, अरे मुझे पता ही नहीं, मैम चैप्टर में खत्म कर देती अगर मुझे पता होता तो। वो तो पता ही नहीं कि उनको क्या दिक्कत है। नहीं अगर उन्हें पूछा भी था बोल दो, मुझे नहीं पता कि नहीं भी मैंने नहीं पूछा 3 दिन तक मुंह फुला लिया, परेशान हो गए, मेरे से बात नहीं की। मुझे तो लास्ट डे वापस आते वक्त पता चला कि ये प्रॉब्लम है। व्हाई यू आर बिहेविंग नॉट गुड टू मी, आप बताओ क्या कुछ हुआ है क्या? मैंने पूछा उनसे, बहुत प्यार से भी बात की। अर्ली मॉर्निंग जब वो उठे बात नहीं कर रहे थे, मैंने बड़ा उनसे रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करी, क्या हुआ, कोई बात हो गई है बता दो, क्यों मूड खराब कर रहे हो भाई, इधर सब आए हुए हैं, क्या हुआ है? नहीं मैं ठंडा हो जाऊंगा, अपने आप बात कर लूंगा। 3 दिन तक बात नहीं की। तो 3 दिन लास्ट लंबे हो गए। आपने पहले दिन ही इतना ग्रेटिट्यूड शो करना था कि ही शुड बी ओपनड अप इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बोलना चाहिए था मैम, मतलब थैंक यू तो मैं कर रही थी। इस तरह का कोई भी सिचुएशन होती है जब आपको लग रहा है कि ही इज अपसेट विद यू, राइट डाउन हिज नेम एंड, और उसके अंदर उनको ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू दो। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड दैट ही इज सो लविंग, ही शेयर्स एवरीथिंग विद मी, ही इज दिस। उनकी तारीफ करते जाना है जो वो है और जैसा आप चाहते हो वो हो। अच्छा वो पूरे 10 से 15 स्टेटमेंट लिख दो और रोज लिखते आओ, एक दिन के अंदर ही फर्क पड़ जाता है। मैं करती हूँ मैम, आज ही करती हूँ, ये नहीं किया मैंने वहाँ पे। हाँ तो बच्चे ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। और सी इस बात की गारंटी है कि आप ये मैजिक सेशंस कर रहे हो, आपकी जिंदगी में तहलका मच जाएगा, आपकी जिंदगी में हर चीज अच्छी आएगी। द ओनली थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस इट। हाँ जी यू हैव टू प्रैक्टिस इट। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो ये ठीक नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। So please, and visualize that you have got a very good compatibility. Just keep on, रात को सोने से पहले वो विजुलाइज करोगे, मतलब आप सपनों की दुनिया में चले जाओ। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना घूमो फिरो ऐश करो, मतलब जो दिमाग में आपके आता है उनके साथ आप अपना टाइम बिताओ, सुबह शाम। फेक इट, ऐसे नहीं तो फेक करके तो कर सकते हो। हाँ जी बेटे वही अट्रैक्शन है। जब आप ये बोलते हो बहुत गुस्सा करते हैं, बात नहीं सुनते, बहुत गुस्सा करते हैं, उन्होंने ये कर, तो आपने ये जो बोला ना ये मैनिफेस्ट कर दिया। ओहो ठीक है, सॉरी मैम। ठीक है, आपने बोल दिया ना कि भाई वो इनका अफेयर उनके साथ चल रहा है, तो आपने मैनिफेस्ट कर दिया, तो योर वर्ड गेट्स मैनिफेस्टेड। सो स्टॉप सेइंग, स्टॉप, इसलिए कहते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप सेइंग, क्योंकि आपका वर्ड आपकी दुनिया बना रहा है। ठीक है मैम, ठीक है, राइट? ठीक है मैम, थैंक यू। Thank you so much for thank you for asking such kind of questions, because this is definitely going to help everybody. And be sure
कि दिस रिमेन्स हेयर ओनली, हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म यू। तो कहीं से भी कोई भी बाहर नहीं जाएगी कोई भी बात, ठीक है? थैंक यू मैम, बस ये थैंक यू सो मच मैम। आपके अंदर पता नहीं क्यों और जो मेरे पार्टिसिपेंट, सबसे बड़ी बात है, एंड आई डोंट नो, एंड द पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर, वो भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहे हैं कि वो अलग ही जोन के हैं जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो इतना कंफर्ट जोन आ गया है व्हेन आई वाज शेयरिंग इट। पहले सोची थी बताऊं ना बताऊं, पता नहीं ये अचानक ही वो फ्लो में निकल आया और अभी मेरे को बहुत लाइट फील हो रहा है क्योंकि मुझे उसका रास्ता पता चल गया। हाँ बस, रास्ते तो बहुत हैं बट कोई काम तो हो नहीं रहा था, कोई काम में आ नहीं रहा था, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो बात तो वही है, आप अपने तभी सिर्फ देखो, मुझे पता है वी हैव गॉट सो मेनी पीपल, इनके अंदर हर एक आपके घर की बात नहीं है, ये घर घर की कहानी है। मेरा घर बहुत अच्छा था मैम, ये घर घर की कहानी है, और घर घर की कहानी में मुझे पता है सब लोग शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म पे तो वैसे ही नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने कोचेस बनाई। सब लोग कह रहे कोचेस क्यों बनाए, इसीलिए कोचेस बनाए so that they are actually coaches which will keep your information confidential and you can open your heart to them without any tension, without any। सारिका तुम्हारे मेरे ख्याल से अंजना है, नहीं ज्योति है, ज्योति दीदी, ज्योति मैम। so you can talk to Jyoti, you can talk to Anjana, there are two coaches, आप किसी से भी बात कर सकते हो and you will feel light about it and they will give you the right direction। ठीक है मैम, ठीक है, चलो हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू and see you tomorrow। Bye bye। ओके।